Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all is well, everybody is fine. Well, beta, let us start our today's lecture. And you know that we have almost covered all the syllabus. Only last essay from unique notes is left now, and the topic is village life. And we will also cover the remaining exercises of correction from unique notes. So let us have a look on the board to see the quotations of this essay which we are going to read today. तो बेटे आज आपकी जो असाइनमेंट है उसमें लास्ट ऐसे अ विलेज लाइफ ये शामिल है. इसके कोट्स देखिएगा. मैन्स हार्ट अवे फ्रॉम नेचर बिकम्स हार्ड. मैन्स हार्ट अवे फ्रॉम नेचर बिकम्स हार्ड. कि अगर हम नेचर से दूर रहेंगे, फितरती मनाजिर से दूर रहेंगे तो हमारे दिल क्या हैं वो सख्त पड़ जाएंगे. नेक्स्ट देखिएगा. अ विलेज ऑफर्स अ मैचलेस सीनिक ब्यूटी. अ विलेज ऑफर्स अ मैचलेस सीनिक ब्यूटी. तो गांव में आपको क्या नज़र आता है? खूबसूरत मनाजिर जो हैं, जो कि बेमिसाल होते हैं. इस तरह के मनाजिर आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं. नंबर 3, लाइफ इन अ विलेज इज़ वेरी काम एंड पीसफुल. कि गाँव की ज़िंदगी बड़ी पुरसकून, बड़ी पुरअमन होती है. Next, number 4, the sun shines brightly and the hues of rainbow are enchanting, but in a village. The sun shines brightly, कि सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता है. And the hues of rainbow are enchanting, और कौसे कज़ा के रंग बड़े दिल फरेब होते हैं. But in a village, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गाँव में. नेक्स्ट देखिए. इन अ विलेज द डे बिगिन्स विद चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. गाँव में जो दिन का आगाज़ है परिंदों की चहचहाहट के साथ होता है. एंड द म्यूज़िकल साउंड ऑफ द मॉर्निंग विंड. और सुबह की जो हवा है उसमें एक अपनी ही मौसीकी, अपनी ही धुन, अपना ही सरूर होता है. नेक्स्ट लास्ट वाला देखिएगा. लाइफ इन अ विलेज मे सीम टफ but it still has unique charms. Life in a village may tough but it still has its unique charms. कि गाँव की ज़िंदगी मुश्किल तो हो सकती है लेकिन इसकी अपनी ही इनफरादियत है, इसकी अपनी ही दिलकशी है. दोबारा देख लीजिएगा. Man's heart away from nature becomes hard. Number 2, a village offers a matchless scenic beauty. Number 3, life in a village is very calm and peaceful. Number 4, the sun shines brightly and the hues of rainbow are enchanting, but in a village. Number 5, it's number 1, 2, 3, 4, 5. Yes, it's number 5. In a village, the day begins with the chirping of the birds and the musical sound of the morning wind. Last, life in a village may seem tough, but it still has its unique charms. So beta, let us talk about this essay in detail. So the topic, as you know, is village life. Beta, you know that village life is perfect. Village life is really perfect for those who want to live in harmony with nature, right? We see that the mother nature claims everything in a village. We find lush green fields, meadows, pastures, streams, canals in a village. And we again see that people enjoy not only fresh air, fresh food, they really enjoy fresh fruit, fresh vegetables and pure water, milk, etc. Similarly, we see that people who live in a village, they lead a very peaceful, a very calm life. They are away from the web of problems which are the part of city life. They are away from all sort of hustle and bustle which is again the part of the fast life of cities. Here we see that there is no contamination, there is no pollution, there are no toxic gases which we often find, which we often see in big cities, right? तो बेटे इसको पढ़ते हैं, आपकी बुक्स में देखते हैं इसके बारे में हमें क्या डिटेल, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं. Village life
एंड द ऐसे स्टार्ट्स विद अ कोट, और कोट आपके पास क्या है, एक स्टेंजा फॉर्म है, और स्टेंजा में क्या है जी, देन कंटेंटेड विद माई स्टेट, कंटेंटेड सेटिस्फाइड, where true pleasure may be seen, let me envoy not the great on a cheerful village green. So one really feel contented, one really feel a sort of composure, calmness while being the part of or while living in a village, and we really enjoy the true peace of mind, the true pleasures. And we shouldn't envoy, we shouldn't think about the facilities, we can discard sometimes the amenities or facilities of life when we see the beauty of nature in villages in abundance, when we see the nature in its full form in a village. जी बेटे, इसको देखते हैं. A village is a small town situated in a country area. Usually it consists of few small huts and grey mud built houses. These houses are built all over the area without any order. So how are we going to define a village? So what is a village? Village, we see village is a small town or a particular small area, and which is comprised of some mud made huts and houses, and we see that these houses or human settlements are not in a orderly वे. देखिए बेटे, विलेज के बारे में हमें बताया गया है कि ये वो छोटा सा सेटलमेंट होती है, एरिया होती है, रिहाइश गाह होती है लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया है, स्मॉल एक लोकेशन होती है जहाँ हाउसेस जो है वो मड मेड होते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट्स जो है एक ऑर्डर में नहीं बनी होती हैं. They are not organized, they are not like the organized colonies or human settlements which we often find in big cities. जी, it is the surrounding greenery that makes a village wonderful. So why a village becomes so fascinating, so captivating, so appealing for us? It is the greenery, it is the lush green fields, these are the lush green fields and the scenic beauty which makes it so. तो वहाँ की जो scenic beauty है, nature है, वो हमें माइल करती है गांव को अप्रिशिएट करने के लिए, विलेज लाइफ को अप्रिशिएट करने के लिए हमें ये ब्यूटी जो है मोटिवेट करती है. द टॉल ट्रीज, ग्रीन फील्ड्स एंड द काम ऑफ नेचर एड टू द ब्यूटी ऑफ द विलेज. तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्या ग्रेजुअली and generally there is a pond of water in the heart of the village. There may be a canal running at one side of the village. Again we see that there are lush green fields, there are tall trees, and there are brooks of water, and which add and nature in all its form add to its beauty, the beauty of the rural areas. Again we see that we sometimes find a pond in the heart of a village, or sometimes a canal run by one side of the village. बाज़ दफ़ा हम देखते हैं गांव जो होता है उसमें ponds, तालाब मौजूद होते हैं, या फिर गांव के एक तरफ जो है कोई नदी या कोई एक कैनाल, एक नहर जो है वो गुजर रही होती है. जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं? वी लर्न अबाउट दैट द विलेज इज़ अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन. Village is the center of our civilization. Nearly 70% of our population live in the villages. Even our cities draw their life from the rural areas, but many of these villages are in the state of utter mean complete neglect, ignorance. Beta, we see that the villages are really or rightly called the center of civilization, and we see that about 70% of people they live in villages, and we the people living in cities, they owe much from the village. They get grains, they get vegetables and fruit all from villages. And similarly we see that despite providing us with all these facilities of life, we see that the people of village, they live in utter neglect. They are ignored. The government doesn't take any proper steps or measures to improve their conditions. People are condemned to ill health and illiteracy. Their living quarters are like stable. Diseases and malnutrition. Malnutrition क्या होता है? Lack of proper nutrition, ग़ज़ाइयत की कमी, lack of proper nutrition are common sights. So what things we commonly see in a village? We see
a very unhealthy atmosphere, and we see literacy, backwardness and ignorance in villages, and we also see that the people are bound to live in quarters which are ill smelling, which are dark, and which are stuffy, and diseases and lack of nutritious food, all these things are the common sight of a village. Malaria, cholera, smallpox and tuberculosis carry away thousands of people every year. Even the commonest facilities of life are not available. If any person falls ill, he goes either to the city for proper treatment or pulls through just by a lucky chance. Pulls through का मतलब क्या होता है? Survive, जिंदा रहना. तो we see that we do not find the proper educational institutions, particularly for higher education in villages, and we do not find proper medication or proper hospitals for the treatment of the people who get ill. If a person falls ill, he definitely moves to a quack, and due to some lucky strokes, lucky stars of his luck, due to some lucky stars or lucky stroke of his luck, he gets survived. तो गांव में क्या हमें नज़र आता है? तो डिसीज़ आम नज़र आती हैं, स्मॉल पॉक्स है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, और इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो हैं, मलेरिया, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, ऑल दिस डिसीज़ कैरी अवे थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर. हर साल लाखों लोग लुक में अजल बन जाते हैं, इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. फिर हम देखते हैं जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है. फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है. वी डू नॉट हैव बेटर और प्रॉपर सिस्टम ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ एंड द वे टू ट्रीट देम. तो लोग क्या करते हैं, वो नीम हकीम ख़तरा जान जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं. वहाँ पर जो हकीम होते हैं, अमूमी तौर पर तबीब होते हैं, और अगर तो लोगों की किस्मत साथ दे तो वो बच जाते हैं, वरना मौत का शिकार हो जाते हैं. जी बेटे, आगे हम क्या पढ़ते हैं कि village in the past was a self-contained. How was the village in the past? A self-contained and independent unit. जी, village in the past was solid, self-contained administrative unit. Self-contained क्या होता है? Complete and also independent. People were knit by ties of love. Everybody looked up to his neighbor in time of need. Hence, there was a feeling of mutual trust and friendship. So, what were the feelings of the people in the past who live in the village? We see that the people, the village in fact was a self-contained and a very complete administrative unit, and people, they developed a sort of mutual understanding, and they were ever ready to help each other in the time of need. ठीक है, they were very cooperative and they were very caring, and they stood by their neighbors, showing their sincerity in the hour of need. कि लोग जो थे वो पहले क्या थे, उनमें mutual understanding थी, और जो गाँव का माहौल पीसफुल था, बहुत कामनेस थी वहाँ पर, ट्रैंक्विलिटी थी, और एवरीबडी लुक्ड अप टू हिज नेबर इन द टाइम ऑफ नीड, कि जब ज़रूरत पड़ती थी तो नेबर्स एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे. द इकोनॉमिक लाइफ, देन वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ विलेजेस की जो इकोनॉमिक लाइफ है, मौशी हालत है, उसके बारे में भी बात करते हैं. The economic life of the villages was based on shoulder foundations. Every person was his own producer and his own consumer. Those who were not directly engaged in agriculture helped the cultivator in other ways. So we see what was the economic condition of the people in the past. The people were their own consumer and their own producer, and you know that those people, those who were not engaged in agriculture directly, they provided डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेल्प टू द कल्टिवेटर, कि जो लोग ख़ुद खेती बाड़ी के शोबे से वाबस्ता नहीं थे, वो फार्मर की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह से मदद करते थे. द ऑयल मैन प्रेस्ड ऑयल फॉर हिम, द मेसन बिल्ट हिज सिंपल हाउस, द पोटर प्रोवाइडेड हिम विद द क्ले पोटर. कॉन्सिक्वेंटली स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री ग्रू अप हुज प्रोडक्शन was regulated by the local demands. Thus, every village has its own potter, blacksmith, carpenter and weaver. There is some sort of autonomy. Autonomy क्या होगा? Self rule, self government,
self rule, अपनी हुकूमत. तो we again see that the people who were not directly associated with the farming, with agriculture, they provided help to the farmer in different ways. Like an oilman, he pressed oil for the farmer. A mason, what did he do? He built a cottage, a hut for the mud made house for the to facilitate the farmer. Similarly, we see potter provided him with the clay poetry. So in this way, with clay pottery, in this way we say that a small cottage flourished in the villages, and this was enough and this was regulated according to the demands, according to the needs of the people. एक small cottage industry जो है वो इस तरह से हमें नज़र आती है कि वो फ्लरिश हुई गाँव में और लोगों की लोकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस स्मॉल कॉटेज जो है इसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट के ज़राए भी मिल गए लोगों को, और यहाँ पर कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई सामने जो लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें जहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही थी और लोगों के लिए ज़िंदगी की सहूलियात जो है उनकी दस्तयाबी को आसान बनाया गया था. जी, इस तरह से हम देखते हैं कि एवरी विलेज वाज हैविंग इट्स ओन मेसन, ब्लैकस्मिथ, पोटर and carpenter, etc. So every village was having a sort of a self rule or self government or independence of its own. Next paragraph में आते हैं हम. Now we will talk about the dislocation of family system. We will also talk about the dislocation of the economic life in the village, in the villages. Apart from the dislocation of the economic life, there has been dislocation in the family life too. Poverty forced some of the young men to migrate to big towns in search of employment. Others were weaned. Weaned क्या होता है? WEANED. Attracted by, fascinated by, कैप्टिवेटेड बाय. गुमराह हो जाना, दिलकशी से अट्रैक्ट हो जाना, तवज्जो माइल हो जाना. बाय द एल्योरिंग. एल्योरिंग क्या होता है? अट्रैक्टिव charm of the city. This resulted in the breaking of the family units. Bonds of love which once united a family were cut asunder. Cut asunder क्या होता है? Cut into pieces, broke into pieces. So we again see that with the passage of time, not only the people of the village, with the passage of time, people of the village, they suffered a lot economically, and as a result, their family lives also got disturbed. We see that the villagers, in search of better facilities of life, in search of better opportunities of getting higher education, in search of getting better medical facilities, and also weaned and allured by the beauty and the charm of the city, being attracted and fascinated by the glamorized life of the city, they migrated from villages to cities, and this directly hit or directly affected the family bond, and the bond of love also got broken. यानी कहते हैं कि जब इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाती है गांव के लोगों की, तो जब बड़े बड़े शहर जो है वो सामने वजूद में आते हैं, नज़र आते हैं, तो गांव के लोगों ने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया. जनाब, एक ज़माने से ही अब तक लोगों ने गांव से शहरों की जानिब माइग्रेशन शुरू कर दी ताकि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल जाए, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएं, और इसके अलावा जो है क्योंकि cities basically are the seats of learning and culture, तो definitely one gets a chance and opportunity to try his luck and also to excel in life. तो आगे बढ़ने के मौके भी जो है वो शहरों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि most of the people from villages, they started to migrate to big cities, and as a result this family bond got अफेक्टेड. ये जो फैमिली बॉन्ड था उनमें सिंसियरिटी थी, लॉयलिटी थी, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई हैं वक्त के साथ साथ. द विलेजेस विच वंस थ्रॉब्ड. थ्रॉब का मतलब क्या होता है? थ्रॉब का जाता है पल्सेट, PULSATE, बीट यानी धड़कना, धड़कना. विद यूथफुल एक्टिविटी हैव बिकम द हाउंड्स. हाउंड्स होगा प्लेसेस ऑफ द एजेड एंड द इनफॉर्म. इनफॉर्म होगा वीक. देयर आर नो लॉन्गर एनी फेस्टिव. फेस्टिव होगा हैप्पी. ओकेजन क्या होगा? इवेंट विच मार्क द विलेज लाइफ इन द पास्ट.
तो हम क्या देखते हैं कि एज द पीपल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स सिटीज़ इन सर्च ऑफ in search of better facilities and comforts of life, so villages only became the haunts and the places where infirm, weak and aged people lived. And we see that the festive activities which were once the part of village life got scattered at the same time, कि वो तमाम healthy activities जो कि गाँव का थोड़ा इम्तियाज़ था, खूबसूरती थी, वो भी वक्त के साथ साथ वो बिखर गए, तमाम happy occasion भी. This indeed signifies means MEANS, मानी होना, मफहूम होना, the death of civilization which was strongly rooted in the open and healthy soil of the villagers. So the direct migration of the villagers towards big cities is क्या है? It indicates a sort of death of the civilization, ये which once rooted in the healthy soil, healthy atmosphere of the village, कि village का वो healthy atmosphere और वो civilization जिसने नमो पाई कहाँ से, गाँव से, उसकी death हमें नज़र आती है और वो suspension में नज़र आती है, क्योंकि villagers जो है mostly migrate करना पसंद करते हैं शहरों की जानिब. जी नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. सम ऑफ आवर बिग इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड इन बिग सिटीज, अदर्स आर ग्रोइंग अराउंड देम. दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन बिग टाउन्स शुड बी डिस्करेज्ड. ठीक है, वी ऑल्सो सी दैट some of our industries as well as factories, they are flourishing, they are being established inside the city and in the suburb areas away from the small towns and villages. तो ये क्या है, this centralization of industry should be discouraged. जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो गांव में ही हम इस्टेब्लिश करना चाहेंगे ताकि वहाँ के लोगों को शहरों में आने से रोका जा सके, उनको मुलाजमत भी मिले और उनको स्टैंडर्ड लाइफ मिले, उनको जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी वो हासिल कर सकें. आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुड गो टू the rural areas from where it draws its raw material. This will engage to the cultivator. Cultivator कौन होता है? Farmer, किसान, who remains unoccupied for the better part of the year. So we see there is a solution, we are having a remedy that the industries, the textile industry should go to village from where it gets the raw material. In this way we would be able to provide jobs and to accommodate the farmers in jobs in those industries, in that textile industries. The farmers who remain unoccupied or unemployed a major part of the year. यानी अगर फैक्ट्रियाँ और टेक्सटाइल मिलें जो है गांव के करीब लगाई जाएंगी, जहाँ से यानी ये टेक्सटाइल मिल्स जो है रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है? गांव से लेती है. तो अगर वहाँ पर ही फैक्ट्री लग जाती है तो एक तो चीज़ें अप्रोचेबल हो जाएंगी और वो फार्मर जो कि साल का बहुत हिस्सा जो है वो चूँकि उनका जो क्रॉप सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है इन इंडस्ट्रीज़ में. इंडस्ट्री विल ब्रिंग इन इट्स वेक with it modern conveniences, comforts like cinema, telephone, better roads and medical facilities. And villages will no longer be a place of social isolation. Isolation क्या होगा? Separation. If domestic industries are revived and placed on more scientific basis. So if we establish industries and factories on scientific basis in the villages or in small towns, so it will definitely be with the passage of time the people will be having certain amenities of life like cinemas, theaters, schools for higher education, better road facilities, big markets. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं गाँव में, तो इनके साथ साथ जो है ये तमाम सहूलियात भी गाँव में खुद ब खुद आ जाएंगी. एंड इट विल मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड विलेजेस विल बी नो लॉन्गर अ प्लेस ऑफ सेल्फ और प्लेस ऑफ आइसोलेशन. ठीक है, तो ये क्या है कि वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू रिवाइव द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑन साइंटिफिक बेसिस. नेक्स्ट देखिएगा बेटा, स्मॉल विलेजेस कैन बी इजिली ग्रुप टुगेदर एज इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. दीज यूनिट्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द पीपल देमसेल्व्स विदाउट एनी इंटरवेंशन. इंटरवेंशन होगा इंटरफियरेंस बाय द डिस्ट्रिक्ट authorities. Again we are having another solution that the small villages should be brought under one administrative unit. In this way these can work in a better way without any interference, without any interference of district
गवर्नमेंट कि अगर गांव जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव को एक यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए तो वो मिलकर अपने मसाइल को बाहमी तौर पर सही तौर पर अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। फिर एक और हमें सोर्स बताया गया है दैट इज़ पंचायत सिस्टम इन विलेजेस। तो वी सी दैट वी हैव पंचायत एंड सम ऑफ द विलेजेस बट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस पंचायत शुड बी reorganized so as to make them really useful. All civil and criminal cases with the exception of serious one should be investigated and decided by these panchayats. So although we are having some panchayats, some local courts or panchayats in the villages, but these are not working properly. We need to organize them so that some cases could be investigated and could be decided over there without any delay. This will stop the delay in justice and save undue expenditure on litigation. Litigation कहता है lawsuits, मुकदमेबाजी। तो इस तरह से क्या होगा कि वो it will save us from delay in justice and too much expenditure on lawsuits कि जो मुकदमेबाजी पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं शहरों में जाकर या इंसाफ का ताख़ीर से मिलना, ये सब मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे अगर पंचायतें सही तौर पर काम करें और मुख्तलिफ मसाइल का हल, मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट जो है पंचायत में ही हो जाए। Above all, it will build up an atmosphere of moral confidence and self-dependence, and it will also give a feeling of self-confidence to the people of these villages and providing them a sort of self-independence in getting the solution of their disputes. Lastly, villagers must be taught to respect their old traditions. They should not migrate to towns and cities. This will stop the process of depopulation, and once again our villages will become homes of peace and love. Government has to take steps, government has to take measures to stop the migration, the blind migration of villagers from villages to big cities. ठीक है? And the villagers should be taught to respect their own culture and traditions. In this way, we can keep alive the culture and civilization of villages. And again, villages can become the place of peace and love. Life will return to them in fullness. The peasant mean farmer, will be once again a symbol of our national glory. तो क्या है? The peasant will definitely be able to get its former place of dignity and glory if the government take these actions like stopping the blind migration of the villagers from rural areas to urban areas. A village is not a piece of heaven on earth if it has its deficiencies. Deficiencies क्या होता है? Flaws, FLAWS, drawbacks. The poet has summarized all this in these lines. तो हमें क्या इनमें बताया जा रहा है कि ये जन्नत का नमूना नहीं है. विलेज लाइफ हैज़ डिफ़िकल्टीज ऑफ इट्स ओन. ठीक है, इट्स नॉट अ हेवन ऑन अर्थ. तो एक स्टेंजा आखिर में इस चीज़ को समराइज करता है. विदाउट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ हियर इज सो डिफरेंट, डिप्राइव्ड ऑफ सिटी लाइक फैकल्टी क्या होगा? कैपेबिलिटीज. तो वी सी दैट समटाइम्स इन विलेजेस, इन स्मॉल विलेजेस वी फाइंड नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, वी फाइंड नो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट एंड we feel ourselves deprived of those amenities of life, those capabilities which we find in those faculties which we find in big cities. तो शहरों में बहरहाल गाँव में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमें जिनका फुकदान जो है वो दिखाई देता है. ठीक है जी, आपका ये ऐसे ख़त्म हुआ. अभी हमें करनी है जो आपकी करेक्शन एक्सरसाइजेस हैं बेटे. करेक्शन एक्सरसाइजेस थोड़ी सी रह गई हैं, उसको आज कंप्लीट करते हैं. आपने 1 to 11 यूनिक नोट से करेक्शन एक्सरसाइजेस करना थी और हमने 1 to 11 में से 11th वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं. उसके आखिरी 5 सेंटेंसेस रहते हैं. बेटे मैं इसको यहाँ से ये रिमूव करती हूँ ताकि आपके लिए एक थोड़ा सी स्पेस बन जाए. मज़ीद कोई चीज़ अगर लिखनी है तो वो हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकें. ठीक है जी, आपकी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ नोट्स में से एक्सरसाइज नंबर 11 जो लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट टर्म के लिए. और इसके 5 सेंटेंसेस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस जो है वो हम लोग अभी करते हैं. जी बेटे, नंबर 6 पे है कि हिज हैंड राइटिंग वॉज सच विच कुड नॉट बी रीड. याद रखना है, सच के साथ विच नहीं है, सच के साथ पेयर बनता है एज. तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी, कि हिज राइटिंग हैंड राइटिंग वॉज सच एज कुड नॉट बी रेड. जी, नंबर 2 है ही यू एंड आई टोल्ड द न्यूज़. ही
यू एंड आई। जब 3 पर्सन आ जाते हैं तो उनकी फॉर्मेशन क्या होती है? 2 + 3 + 1। सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, और आखिर में आई आएगा। तो इसमें ऑर्डर जो है प्रोनाउन का वो आपने चेक करना है। पहले सेकंड पर्सन आ जाएगा यू, फिर ही और फिर आई। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। यू, ही एंड आई टोल्ड द न्यूज़। नंबर 8, 5 and 5 makes 10। 5 and 5 makes 10। बेटा याद रखना है एंड चीज़ों को प्लस करता है। जब प्लस करता है तो फिर वर्ब के साथ ऐसे ही यस नहीं आएगा। तो जवाब क्या आएगा? 5 and 5 make 10। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सी। नंबर 9, दे प्लेड फुटबॉल अंडर द रेन। अंडर द रेन नहीं होता, इन द रेन होता है। प्रेपोजिशन गलत है, बारिश में उन्होंने फुटबॉल खेला। तो बी ऑप्शन सही है। 10, द कैटल इज़ ग्रेजिंग। बेटा कैटल जो है ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल भी यही है। इसका ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। तो कैटल इज़ नहीं होगा, द कैटल आर होगा। कैटल जो है प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, तो कैटल अपने साथ प्लूरल वर्ब आर लेगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो 11 एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट हुई। अब हमने करेक्शन की ही जो एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं वो इस टर्म के लिए 3 करना है। और ये 3 सारा मिक्सचर है, ये मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं जो ऑलरेडी की गई एक्सरसाइज में से ये सेंटेंसेस लिए गए हैं। नंबर 1, पहला आपके पास आता है द बोथ गर्ल्स आर टॉल। मैंने आपको ये हमने पहले भी पढ़ा, पहले भी मैंने आपको बताया बोथ के बाद हमेशा द इस्तेमाल होता है, ऑल के बाद रूल है, ऑल और बोथ के बाद द आता है। तो ये लिखा है द बोथ गर्ल्स आर टॉल, गलत। क्या आएगा? बोथ द गर्ल्स आर टॉल। बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2, ही इज़ गुड ऑफ इंग्लिश। ये भी हमने पढ़ा, गुड ऑफ नहीं होता, टू बी गुड एट। टू बी गुड एट एक ईडियम है। टू बी गुड एट का मतलब है टू बी एक्सपर्ट इन, एक ईडियम है, ठीक है। तो यहाँ आएगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश। तो कौन से वाली स्टेटमेंट सही हुई? ए। नंबर 3, आई एग्री विद योर सजेशन। विद अग्री के साथ उस वक्त आएगा जब विद अ पर्सन होगा। जब सजेशन की बात की जाती है तो टू प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। आई अग्री टू योर सजेशन, ये इसका सही आंसर डी है। नंबर 4, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ये भी हमने किया। डॉग इज़ अ, कोई एक डॉग फेथफुल नहीं होता, डॉग की जबिल्लत में शामिल है फेथफुल होना। तो यहाँ दा लगाएंगे डॉग से पहले तो पूरी रेस आ जाएगी, उसकी पूरी डॉग मतलब हर डॉग इसमें शामिल होता है, फिर पूरी रेस को शामिल कर लेते हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल और बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 5, ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली। बेटा जब हम किसी को व्हेन वी आर शोइंग मैनर्स और बिहेवियर तो हम क्या कहते हैं? ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर। वो मैनर शो होता है। तो यहाँ आएगा ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली नहीं, ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर। आप मैनर शो कर रहे हो किसी के, फ्रेंडली मैनर्स हैं। ए ऑप्शन सही है। नंबर 6, ही नोज़ स्विमिंग। आपने देखा कि हम जब कोई कैपेबिलिटी, कोई एक्सपर्टीज़, कोई स्किल को जाहिर करते हैं तो हाउ टू इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू, ठीक है। या यस हाउ टू इस्तेमाल किया जाता है। तो ही नोज़ स्विमिंग गलत है। ही नोज़ हाउ टू स्विम, ही नोज़ हाउ टू पेंट, इस तरह से आप लिखते हैं। सी ऑप्शन सही है। फिर नंबर 7, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। ज्यूरी जो है यह भी हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा, ज्यूरी एक ग्रुप नाउन है। ग्रुप नाउन है, अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो द ज्यूरी वॉज नहीं, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। तो ए ऑप्शन, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 9, कैटल इज़ ग्रेजिंग। अभी बताया कैटल अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, कैटल आर ग्रेजिंग। डी ऑप्शन सही है। नंबर 10, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अ बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एक कंट्री है, इसकी स्टेट्स चाहे बिखरी हुई हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये मुल्क तो एक है ना, तो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे, वर्ब सिंगुलर आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका हैज़ अ बिग आर्मी। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सरसाइज नंबर 2, आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी। फाउंड सेकेंड फॉर्म है तो आने वाली सारी फॉर्म पास्ट हो जाएंगी। आई फाउंड दैट ही इज़ नहीं, ही वॉज गिल्टी। नंबर 2, हॉर्स इज़ अ फास्ट रनिंग एनिमल्स। तो बेटा एक हॉर्स फास्ट रनिंग नहीं, हॉर्स तो होते ही फास्ट एनिमल है, फास्ट रनिंग एनिमल है, और इसलिए इसकी पूरी रेस को कम्युनिटी इसकी रेस को जाहिर करने के लिए दा लिखेंगे। द हॉर्स इज़ द फास्ट रनिंग एनिमल। सी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर हायर यू गो कूलर इट इज़। मैंने कहा था जब 2 कंपेरेटिव डिग्रीज आती हैं तो दोनों के साथ दी लगता है, हायर और कूलर के साथ दी लगेगा। द हायर
द कूलर। दो कंपेरेटिव डिग्रीज एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो दी लेती हैं। फिर है आई फाउंड दैट ही वॉज, आपका नेक्स्ट नंबर 4 है 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स, 10 एक राउंड ऑफ फिगर है और वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो 10 माइल्स आर नहीं, 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। नंबर 5, आई हैव पास्ड माई मैट्रिक इन 2006। बेटा 2006 की बात हो रही है, पास की बात हो रही है, तो हैव कभी भी नहीं आएगा, पास इंडेफिनिट आएगा, तो आएगा आई पास्ड माई मैट्रिक इन 2006। बी ऑप्शन सही है। फिर 6 है ही ऑलवेज सेज द ट्रुथ। बेटा सेज द ट्रुथ नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीक द ट्रुथ होता है, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ए ऑप्शन सही है। नंबर 7, ही रेन लेस्ट ही मे मिस द ट्रेन, और मैंने बताया था लेस्ट और इसका पेयर बनता है शुड के साथ। ही रैन लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ये कौन सी ऑप्शन सही हुई? ए। फिर आगे है ही इज़ नॉट एज टॉल एज मी। ही इज़ नॉट एज टॉल एज मी, तो पेयर बनता है सो और एज का, सो और एज का, तो क्या बनेगा? ही इज़ नॉट सो टॉल एज, और जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आखिरी ये सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस मी का क्या होगा? आई। सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है जब आप इसको सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो दो लोगों को, तो ही इज़ नॉट सो टॉल एज आई, सब्जेक्टिव केस एंड में आएगा। फिर आप देखें नंबर 9 पे, आई एज वेल एज माई ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी। आई एज वेल एज माई ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी, इसमें करेक्शन क्या हुई? मैंने बताया था आपको, ये भी एक्सरसाइजेस की है। एज वेल एज के साथ जब दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट क्या हैं? आई और माई ब्रदर, ठीक है, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ अग्रीमेंट में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट आते हैं, तो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, तो यहाँ पर इज़ गलत है कि आई एज वेल एज माई ब्रदर एम वॉचिंग टीवी। सी ऑप्शन करेक्ट है। बेटे आपका लास्ट वाला है ऑल्दो ही वॉज ओल्ड येट ही कैन रन फास्ट। ऑल्दो ही वॉज ओल्ड येट ही कैन रन फास्ट, वॉज है पास्ट, एक क्लॉज पास्ट है, तो दूसरी कैन नहीं रह सकती, वो कुड हो जाएगा, और येट की ज़रूरत नहीं है, कॉमा के साथ कंजक्ट हो जाएंगी क्लॉजेस कि ऑल्दो ही वॉज ओल्ड कॉमा ही कुड रन फास्ट, ही कुड रन फास्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। जी बेटे तीसरी एक लास्ट एक्सरसाइज करनी है, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट है। नंबर 1, आई लाइक सच बॉयज़ हु स्पीक द ट्रुथ। मैंने बताया था सच के साथ पेयर किसका बनता है? एज का, ठीक है, सच एज सामने भी लिखा हुआ है, तो आई लाइक सच बॉयज़ एज स्पीक द ट्रुथ। डी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ कोई एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट नहीं हो रहे कि पहले के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको जो इमीडिएट सब्जेक्ट है, इमीडिएट प्रोनाउन है, उसके साथ फॉलो होता है हमेशा आने वाला हेल्पिंग वर्ब। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, तो कौन सी वाली ऑप्शन इसमें सही हुई? बी। आगे देखें, स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम एज इट बिगेन टू रेन। मैंने बताया था स्कार्सली के साथ पेयर बनता है व्हेन, WHEN, स्कार्सली और व्हेन का पेयर है, तो क्या बनेगा? स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। लास्ट वाली ऑप्शन डी स्टेटमेंट सही है। नंबर 4, आई बॉट अ वॉच फ्रॉम द शॉप विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जी बेटे ये थोड़ा लिख के आपको बताना पड़ेगा, बस 2-3 आपके सेंटेंसेस और करने वाले हैं, फिर ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है बेटा, देखो ये विच के साथ शुरू हो रही है क्लॉज, और विच क्लॉज कौन सी है? रिलेटिव प्रोनाउन है विच, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये दरमियान में आती है मेन क्लॉज के। तो आई बॉट अ वॉच फ्रॉम द शॉप, मेन सेंटेंस क्या है? आई बॉट अ वॉच, ठीक है, फ्रॉम द शॉप, ये आपका मेन सेंटेंस है। और विच क्लॉज जो है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू हो रही है, दरमियान में आएगी। एडजेक्टिव क्लॉज है वो यहाँ एडजस्ट होगी, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। आई बॉट ये इसमें आंसर देखते हैं, आई बॉट अ वॉच विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम द शॉप।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 5, दिस इज़ वर्थ सीइंग साइट। वर्थ एक एडजेक्टिव है, अपने साथ नाउन या प्रोनाउन को या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लेता है। तो वर्थ सीइंग जो है ये हमेशा एंड में आता है कि दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, नहीं दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग। फिर देखें, ही सेड दैट ही इज़ इल। अगर सेड लिखा है तो आने वाले वर्ब जो है वो भी पास्ट हो जाएंगे। ही सेड दैट ही इज़ इल, नहीं ही वॉज इल, ये पीछे पढ़ा है हमने, सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 7, द ट्रेन अराइव्ड इन लाहौर। अराइव्ड इन पहुंचना होता है, लेकिन वो अराइव्ड इन नहीं है, क्या है, अराइव्ड एट, फ्रेजल वर्ब है। ही द ट्रेन अराइव्ड एट लाहौर, प्रपोजिशन की गलती, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मर्डरर हैंग्ड यस्टरडे, ये देख लीजिएगा, द मर्डरर हैंग्ड यस्टरडे। बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट है और उसका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या आता है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड आता है, वॉज वर्ड आता है। तो ये आएगा, यस्टरडे कह रहे हैं मैं पास्ट इंडेफिनिट हूँ, लेकिन इसकी उन्होंने लिखी है एक्टिव वॉइस लिखा है, एक्टिव वॉइस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे, और कौन सी ऑप्शन सही हुई, ए ऑप्शन। फिर है आई ही एंड यू आर फ्रेंड। अगेन आपको फॉर्मेशन बताई थी 2, 3 और 1, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन और फिर फर्स्ट प्रोनाउन। तो आई ही एंड यू आर फ्रेंड नहीं होगा, होगा यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट देखें, व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ नहीं होती, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, लास्ट न्यूज़ गलत है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, डी स्टेटमेंट सही है। तो बेटे ये 3 एक्सरसाइजेज भी आपकी कंप्लीट हुई, आपकी करेक्शन भी ख़त्म हो गई है और बेटे आपका सिलेबस जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। लास्ट ऐसे था, कुछ करेक्शंस थी, वो आज के पीरियड का हिस्सा थी और उसे भी कंप्लीट करवाया जा चुका है। अब जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, सो दैट यू वुड बी बेटर प्रिपेयर फॉर योर कमिंग पेपर्स एंड टेस्ट वट एवर, राइट बेटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सब चीज़ें जो है बेहतरीन तरीके से आप इनको तैयार करें, याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कुछ आपने लर्न किया होगा, सब चीज़ें तैयार साथ साथ करते रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।